Hello guys, today we are going to deal with the lecture that is we are here with the topic. The theme of the topic is Stay Calm, which is written by Greenville Clayser. Now let me tell you about this poem. This poem is similar to the poem or the theme or the message which is there in the poem, or the message which is conveyed in this poem, that is Stay Calm, and the poem If is the same one. In the last lecture I had taken or told you about we were there with the poem that is If. Today we are going to deal with the next poem, that is Stay Calm. In this poem, the author has told us that how we should stay calm and the results of staying calm. Let's begin with the poem. In the first paragraph, the first paragraph is about, there are three paragraphs. Let me tell you first, there are three paragraphs in the poem. In the first paragraph, the poet has told that suppose if we tell anyone something, कुछ हमने बोल दिया है किसी को और हमको मालूम है कि वो बोलने के बाद हम रिग्रेट करने वाले हैं या पछताने वाले हैं, तो ऐसे समय हमने क्या करना चाहिए कि स्टेम काम करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, हम हमेशा देते हैं कि जैसे आप व्हेन यू कम आउट, व्हेन यू सुबह व्हेन यू आर देयर फॉर योर कॉलेज एंड वाइल मूविंग फ्रॉम योर होम, आपका तो मैं अपने मम्मी से हो जाता है एंड शी सेज दैट that every day she gets up late and the different things as usual, as mom is there always with the kids to find faults. तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप भी मम्मी को कुछ तो भी बोल देते हैं जिससे आपको मालूम है कि मम्मी नाराज़ हो गई है. बट व्हेन यू गो टू द कॉलेज यू फील दैट यू रिग्रेट फॉर वॉट एवर यू हैव सेड टू योर मॉम. ऐसे जब सिचुएशन अराइज होती है तो ऑथर का कहना है नेक्स्ट टाइम और इन फ्यूचर वी शुड, in such circumstances we should not speak anything, we should keep mum, we should keep quiet and handle the tackle properly. Now in the second paragraph the author has told you that according to the poet it's easy to be angry when we are deceived. जब कोई हमें धोखा दे देता है तब बट नेचुरल हमें गुस्सा आना ही है और आता ही है. बट उनका मैसेज ये है, क्लेसर जो ग्रीनविले क्लेसर इस पोएम के माध्यम से देना चाहते हैं कि इन सच सिचुएशन ऑल्सो, circumstances also, when you know that you have been deceived or cheated by someone, one should not get angry and one should maintain calmness and coolness. If you are going to behave in such way, we are going to win the battle, or we are going to win the biggest thing biggest thing in life, and we can fight with any situation. In the third paragraph, poet has told us that tranquility and peaceness is most important in human's life. हमें शांति रखना चाहिए, शांतता से हर काम लीड अप करना चाहिए. When we are confronted with an enemy, यानी आपका कोई दुश्मन है जिससे आपका कोई दुश्मन है और जब उनको आप उनके सामने या आपको उनको फेस करना पड़ता है तो इस समय हम चिढ़ जाते, गुस्सा हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसे लूज टॉक कर देते हैं जिनसे फाइट निर्माण हो सकती है, क्रिएट हो सकती है. तो पॉइंट का कहना है ऐसे सिचुएशन में भी सच सर्कमस्टांसेस अराइजेस in one's life, one should maintain tranquility, one should maintain peaceness, one should not lead that problem which would can be we should not deal with such kind of situations, because if we are going to lose our hope and calmness and tranquility, definitely we can lead ourselves in trouble. तो ऐसे सिचुएशन को मेंटल बैलेंस न खो के हमने क्या करना चाहिए, रेडीली फेस करना चाहिए, ताकि जो कामनेस एंड मेंटल बैलेंस हम अपने ही माइंड का बना सके. इन फैक्ट वी शुड लूज टू विन. हमने लूज टू विन, मालूम है हमें लूज हो रहे हैं, पर वो आपका लूज करना नहीं है कोई भी सिचुएशन को, बट डेफिनेटली यू वुड विन दैट सिचुएशन इफ यू आर बैलेंस्ड काम. The message which poet wants to give through this poem is that if we are balanced, calm and tranquil, when anything goes wrong against us, अगर सब कुछ हमारे विरोध में चला गया है, बैलेंस्ड, कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी, वी कैन, ये तीन चीज हमें ध्यान रखनी है. अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए, अपने को काम रखना चाहिए, कूल रखना चाहिए, ट्रैंक्विल रखना चाहिए, पीसफुल रखना चाहिए. अगर हम कोई भी सिचुएशन में इन चीज़ों को ध्यान में रखकर बिहेव करते हैं तो वी आर श्योरली गोइंग टू मास्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, एंड दैट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द आर्ट ऑफ स्टेइंग काम.
हम हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी, और ये अचीवमेंट रहेगी स्टेइंग कामनेस की. दैट इज the message which poet wants to give, that in any of the situation one should maintain calmness, tranquility and peaceness. यही situation और यही message is conveyed through the poem which is written by Rudyard Kipling. उनका भी कहना है कि in any situation, if means अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसे हम सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते हैं, तो इफ वी आर एग्जिस्टिंग इन सराउंडिंग, इफ वी आर फेसिंग दैट सिचुएशन, in this situation also one should maintain calmness and coolness. So the message which is conveyed through both the poem is same, but you have to read both the poems. Up now I'll tell you what can be asked in university, from the university point of view regarding the MCQ. अब इस poem में MCQ कैसे पूछ सकते हैं? For example, they can ask you author's name पूछ सकते हैं. What is author's name? ये poem में किसके बारे में बताया है? The poet has told about maintaining calmness. दे 4 ऑप्शंस दे सकते हैं. द पोएट हैज टोल्ड अबाउट लाफ्टर हो सकता है, पोएट हैज टोल्ड अबाउट ट्रीज हो सकता है, द पोएट हैज टोल्ड अबाउट कामनेस हो सकता है, एंड आउट ऑफ दैट मल्टीपल चॉइस यू हैव टू आंसर. तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं. विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन लाइफ, ये क्वेश्चन आ सकता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन लाइफ इज ट्रैंक्विलिटी एंड पीसनेस. विच 3 थिंग्स द पोएट हैज सजेस्टेड टू अस टू मेंटेन. 3 चीज़ों के बारे में कौन सा बताया जो हमें मेंटेन करना चाहिए, जैसे बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, कामनेस मेंटेन करना चाहिए, ट्रैंक्विलिटी मेंटेन. ये हुआ कौन सा पोएम से रिलेटेड? ये हुआ द पोएम रिलेटेड विद स्टे काम. नाउ आई विल टेल यू व्हाट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड रिलेटेड विद द पोएम रुडयार्ड किपलिंग, दैट इज इफ. फॉर एग्जाम्पल ये पूछ सकते हैं, जैसे हमने कहा द ऑथर ऑफ द पोएम पूछ सकते हैं. व्हाट इज द मैसेज गिवन, जैसे यहाँ मैसेज ये देना चाहा है पोएट ने. वी शुड दस कंसिडर एवरीथिंग, एवरीवन इम्पॉर्टेंट. हु इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पोएम? एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट. हु कैन ट्विस्ट आवर वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड को कौन ट्विस्ट कर सकता है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे. डिसऑनेस्ट पीपल, उसका करेक्ट आंसर है कि डिसऑनेस्ट पीपल हमारे वर्ल्ड को और या हमारे एक्शंस को क्या कर सकते हैं? सीज अप कर सकते हैं या स्टॉप अप कर सकते हैं. व्हाट शुड वी नॉट डू, हमने क्या नहीं करना चाहिए? वी शुड नॉट गेट एंग्री, वी शुड नॉट ब्लेम एनीवन. तो ये करेक्ट आंसर्स हम बता रहे हैं. इसके मल्टीपल चॉइस आपको कुछ भी आ सकते हैं. वन शुड नॉट गेट एंग्री, वन शुड मेंटेन कामनेस, वन शुड नॉट हेट एनीवन. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट पोएट हैज टोल्ड अबाउट हेटनेस, जैसे द पोएट हैज टोल्ड दैट वी शुड नॉट हेट, लव, फ्रेंडशिप, ऐसा कुछ भी हो सकता है. बट द करेक्ट आंसर इज वी शुड नॉट हेट आवर फ्रेंड्स, एल्डर्स, जो भी है. नेक्स्ट, so these are the questions which can be asked related with poem section. These were the multiple questions. In the next class or in the next lecture we would be dealing with the next poem. I think the next poem is Ballad of the Landlord. Thank you everyone. Have a good day. Stay blessed and take care of yourself. Thank you. भाई